طور سے خواتین میں بھی اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ اگر کوئی بڑھیا سینڈل پہن کے مسجد چلی آئے تو شاید وہ سینڈل پہن کے دوبارہ گھر نہ جا پائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یحلبن احدکم ماشیۃ احد الا باذنہ، تم چپل چرانے کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی کسی جانور کے تھن میں سے بغیر پرمیشن کے دودھ نہ نکالے۔ گاؤں دیہات میں ہم نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کی بکری کھلی رہتی ہے، بکری دروازے کے پاس سے گزر رہی ہے، اے دوڑ جاؤ چھگڑیا پکڑنا تھا تو وہ دودھ نکال، ارے کہے تمہارے باپ کی ہو بکری؟ ہاں، بغیر پرمیشن کے نبی فرماتے ہیں لا یحلبن احدکم ماشیۃ احد الا باذنہ، کسی جانور کا دودھ تھن میں سے کوئی بغیر پرمیشن کے نہ نکالے۔ ایحب احدکم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته، یہ جو تھن میں اللہ دودھ پیدا کرتا ہے نا جانور کے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کی مثال اسٹور روم سے آپ نے دی ہے، جہاں آپ اپنا سامان اسٹور کرتے ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ چپکے سے کوئی تمہارے اسٹور روم میں گھس جائے، ڈراور توڑ دے اور اس کے بعد کھانے پینے یا جو بھی سامان وہ نکال کے لے کے چلا جائے؟ ہے کوئی جو پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہی یہ جو جانور کے تھن ہیں یہ اسٹور روم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دودھ کو اسٹور کرتا ہے، تو اگر کسی کا سامان لینا ہے اس کے اسٹور سے تو پہلے پرمیشن لے لو، پہلے پرمیشن لے لو۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یاخذن احدکم متاع احد لاعبا ولا جادا، تم میں سے کوئی کسی کا کوئی بھی سامان چھوٹا ہے یا بڑا بغیر پرمیشن کے نہ لے، مذاق میں بھی نہ لے، سیریسلی نہ لے۔ بہت سارے لوگ مذاق میں ایک دوسرے کا سامان چھپا لیتے ہیں، اٹھا کے لے کے چلے جاتے، کہے بھائی کوئی کسی کا سامان نہ لے، لاعبا ولا جادا، لہو لعب کے طور پہ، کھیل تماشے کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، اور نہ ہی سیریسلی۔ اس حدیث کے ایک راوی سلیمان الدمشقی کہتے ہیں، سلیمان الدمشقی کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں لعبا ولا جدا، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی بغیر پرمیشن کرنا، ڈنڈا، بہت سارے بزرگ مسجد میں آتے ہیں ڈنڈا لے کر کے مثال کے طور پہ، اب وہ ڈنڈا وہاں باہر انہوں نے کھڑا کر دیا، اب ڈنڈا لے کے کوئی رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا۔ کوئی کسی کی لاٹھی اور ڈنڈا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لے، اس کو لوٹا دے۔ تو جو لوگ دوسروں کا سامان چرا لیتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ چوری اور ڈاکہ زنی ہماری شریعت میں کتنی مایوب چیز ہے اور کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے حرام کمائی کی۔ حرام کمائی کی ایک شکل یہ بھی ہے مال کو غصب کرنا۔ غصب کی تعریف پہلے سمجھ لیجیے، کسی کا مال ناحق دبا لینا، بغیر آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ نے اس پہ یا تو قبضہ جما لیا یا اس کا مال ہڑپ کر لیا جبکہ آپ کا اس پہ حق نہیں ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما توبه یوم القیامت من سبع ارضین، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبا لی ہے، ظلم کے طور پہ ناحق لے لی ہے، قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں کا ہار پہنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہ ساتوں زمینوں کا ہار کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہار گلے میں لٹکا دیا جائے گا تو یہ بوجھ تم کیسے برداشت کرو گے؟ گاؤں دیہات میں خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اتنے حریص ہوتے ہیں دولت کے، کھیتی باڑی کے، میڑ سمجھتے ہیں نا، میڑ، ایک کھیت اور دوسرے کھیت کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا، میڑ ہوتی، چھانٹتے رہتے، کاٹتے رہتے، اور کتنے لوگ تو پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد میڑ غائب، اور میڑ یہاں تھی تو وہاں چلی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے شخص پر من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے، لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر۔ حال یہ ہے نالی نابدان لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، گٹر نالی کے لیے راستے نہیں دیتے،
दीवार बढ़ा के उठा लिए, पता चला रास्ते गायब। गांव देहात में ज्यादा ही होता है, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं गांव में कि जहां से बैलगाड़ी गुजरती थी किसी जमाने में, बाप दादाओं के जमाने में हमने देखा गांव में इतने रास्ते होते थे एक घर और दूसरे घर के बीच में, आराम से दुल्हन बैलगाड़ी पे बैठ के घर के दुआरे पे आके उतरती थी। आज वहां बमुश्किल एक मोटरसाइकिल या साइकिल, 4 पहिया गाड़ी नहीं गुजर सकती। लोगों ने बढ़ा के वो जमीन हड़प करके, और अरे एक बालिश से एक हाथ में आप क्या बन जाओगे, मुझे बताओ आप क्या आपका बन जाएगा, क्या भला हो जाएगा। आज हालत यह है कि जनाजे के लिए खाट भी कसम खुदा की बाज गलियों से आप नहीं निकाल सकते, अपने मुर्दों को आप जो है खाट पे लेकर के नहीं जा सकते। ये हाल, लोग एक दूसरों की प्रॉपर्टियों पे, जमीनों पे, जायदाद पे लोग कब्जे जमा लेते हैं। अब तो हालत ये है, जमीन खरीदो फौरन बाउंड्री खिंचाओ, हो गया जमाना। जब लोग जमीन खरीद करके यूं ही छोड़ दिया करते थे, कुछ दिन के बाद आओगे आप, जमीन खरीद के छोड़ के चले गए कमाने देश परदेश, चंद सालों के बाद वहां दूसरे का मकान आपको बनकर तैयार मिलेगा। ये मेरा काम, मैंने अपनी आंखों से देखा कितने लोगों के साथ ये हादसे हो चुके हैं। इस कदर हमने देखा है वकीलों की पूरी गैंग चलती है जो कमजोर लोगों को तलाशते हैं, जो बेचारे जरा कच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जरा कच्चे होते हैं, उस पे धावा बोलकर वकील जो कोर्ट में वकालत करते हैं। लखनऊ में मैंने देखा 200 वकीलों की गैंग चलती है। बाकायदा देखा कोई जमीन आदमी गायब है, कुछ दिनों से उस पर कब्जा जमा लिया। गांव देहात में भी ऐसा बहुत होता है। फिर भाई बहुत प्यारा वाकया, जमीन गसब कर लेना, लोगों ने इसको मामूली समझ रखा है। नबी के जमाने में या मरवान बिन हकम के जमाने में एक वाकया मदीने में हुआ। अरवा बिन्त उवैस नामी एक औरत ने हजरत सईद इब्न ज़ैद पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनकी थोड़ी सी जमीन गसब कर ली है। मामला मरवान बिन हकम के पास पहुंचता है। मरवान बुलाते हैं हजरत सईद बिन ज़ैद को कि भाई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है कि तुमने अरवा नामी औरत की जमीन गसब कर ली है, कोई है दलील तुम्हारे पास कि तुम बरी उस जिम्मा हो? हजरत सईद इब्न ज़ैद ने कहा, वो खलीफे वक्त, हाकिम वक्त, मेरे पास दलील तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने अपने इन्हीं कानों से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, मन ज़लमा मन नखज़ शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, जिसने किसी की जमीन एक बालिश जुल्म के तौर पे नाहक हथिया लिया, तो वह यौमल क़ियामत मिन सबे अर्ज़ीन, 7 जमीनों का तौक उसके गले में पहना के डाला जाएगा। मुझे बताइए, ये हदीस सुनने के बाद भाई क्या मैं ये जुर्अत करूंगा कि किसी की जमीन पे नाहक कब्जा करूं? मरवान ने कहा, इसके बाद मैं आपसे कोई दलील नहीं मांगूंगा। हजरत सईद इब्न ज़ैद ने अपने हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा आमी बसरहा, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं बरी हूँ, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये औरत मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मेरा दामन दागदार कर रही है। एक ऐसा सहाबी जो अशरा मुबश्शिरीन बिल जन्ना है, ऐसे सहाबी का दामन दागदार किया जा रहा था। बताइए कि उसका दिल खून के आंसू रोएगा कि नहीं? हजरत सईद ने फजा में हाथ उठाए, कहा, अल्लाह अगर मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाहुम्मा आमी बसरहा, ऐ अल्लाह तू इस औरत की बीनाई छीन ले, ऐ अल्लाह इसको अंधा बना दे, वजअल कब्रहा फी बैतिहा, और अल्लाह इसकी कब्र तू इसके घर में ही बना दे। चंद दिन गुजरे थे, लोगों ने देखा, मदीने वालों ने देखा कि उस औरत की बीनाई चली गई, लाठी के सहारे वो टटोल कर चलने लगी, और उसके बाद जोर की बारिश होती है। उसके घर के सामने एक कुआं था, पानी इतना भर जाता है उसको पता नहीं चलता, टटोलते टटोलते उसी कुएं में जाके गिरकर मर जाती है। पूरे मदीने में आवाज फैल गई, असाबत दावत सईद इब्न ज़ैद की बद्दुआ इस औरत को लगी है। इसलिए मेरे भाइयों, कभी किसी मजलूम की बद्दुआ नहीं लेना, किसी की जमीन जायदाद, किसी की
प्रॉपर्टी तुम दबा लोगे, वो रात में उठ के रोएगा, वो सजदे में गिर के तुम्हारे लिए बद्दुआएं करेगा, वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के अगर गिड़गिड़ाएगा। मजलूम कोई भी हो, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। दावतुल मजलूम मुस्तजाबा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मजलूम कोई भी हो, काफिर भी हो, फासिक भी हो, बेदीन हो, जरूरी नहीं है कि वो दीनदार होगा तभी उसकी बद्दुआ कबूल होगी। वो फासिक है, फाजिर है, बेदीन है, अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है और वो हाथ उठा के बद्दुआ करेगा तो मेरे भाइयों याद रखो उसकी ये बद्दुआ आसमानों को चीरते हुए अर्श इलाही तक पहुंचेगी। आज लोग दीन ईमान अकीदा सब बेच डालते हैं चंद टकों के लिए, पैसों के लिए। तो एक चीज ये भी है कि गसब जो है किसी का माल नाहक नहीं लेना चाहिए, नाहक किसी के माल पे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना चाहिए। हराम कमाई की एक शक्ल है खयानत। खयानत का लफ्ज जब आता है तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि किसी ने किसी के पास कोई अमानत रखी है, कुछ रुपया पैसा रखा है तो उसमें खयानत न की जाए। यकीनन ये इसका पहला माना यही जहन में आता है और अमानत की बड़ी ताकीद आई कि भाई कोई अगर आपके पास कोई अमानत रख रहा है, कुछ सामान रख रहा है, कोई रुपया पैसा रख रहा है, तो जैसे उसने रखा उसकी अमानत वैसे ही आप रखे रहिए, जब वो मांगे तो आप उसके हवाले कर दे। अगरचे अमानत का दायरा बड़ा वसी है, अमानत तो ये भी है कोई दोस्त अगर आपसे कोई राज की बात बता रहा है तो आप उसको अपने सीने में महफूज रखिए, ये भी अमानत है, ये भी अमानत है। अगर उसके राज को आपने ओपन कर दिया, किसी ने आपको अपना समझ के अपना राज बता दिया और आपने उसके राज को ओपन कर दिया, ये भी खयानत है। ऐसे ही कोई प्राइवेट मजलिस है, कोई मीटिंग चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई ये प्राइवेसी है कि यहाँ जो बात हो रही है बाहर लीक ना होने पाए, तो बाहर निकलने के बाद भी उस बात को आप अपने सीने में रखिए। इसलिए कि नबी फरमाते इन्नल मजालिस अमाना, मजलिसों में जो खास मजलिसों में बातें होती हैं वो अमानत है। तो मैं माल की अमानत के हवाले से आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। आज खयानत इस कदर हमारे मुआशरे में आम हो चुकी, कसम अल्लाह की आप जायजा लीजिए, 4-6 लाख रुपया किसी के पास रख दीजिए और महीना 2 महीना बाद मांगने आइए भैया मेरी अमानत दे दीजिए, पता चला कहेगा क्या, वो तो हम धंधे में लगा दिए। 90% लोगों का जवाब यही मिलेगा, हमने तो धंधे में लगा दिया लेकिन दे देंगे। अरे भैया कहूँ भागा जाए था, अरे बेईमान समझे हो मैंने, यही अमानत का मतलब है कि आप उसको धंधे में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, खर्च कर लो। अरे वो अमानत थी, जिस तरह हमारे नबी को लोग सादिक व अमीन कहा करते थे, नबूवत से पहले भी लोग अपनी अमानतें लाके हमारे नबी के पास रखा करते थे। और जब आप मक्के से मदीने हिजरत कर रहे थे, हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटाया था, ये कहा था कि जिन लोगों की अमानतें मेरे पास है अली, वो अमानतें तुम लोगों के हवाले कर देना, फिर तुम मदीने आना। यह है अमानत। और खयानत दुनिया के मामले में अगर आदमी कर रहा है, बिजनेस धंधा मार्केट में कर रहा है, खयानत कर लिया, अपने पार्टनर का हक दबा लिया। आमतौर पे जो पार्टनर होते हैं ना, बिजनेस पार्टनर, वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं। और एक रिवायत में अगरचे उसकी सनद ज़ईफ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना सालिसुश शरीकैन, 2 आदमी अगर पार्टनर हैं तो मैं उनका तीसरा मैं होता हूँ, जब तक एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ खयानत नहीं करता है। और जब पार्टनर के साथ खयानत करने लगता है, बीच में से मैं निकल जाता हूँ। पार्टनर अक्सर गड़बड़ करते हैं, सही हिसाब नहीं देते, माल दबा लेते, या प्रॉफिट कितना हुआ पार्टनर का बराबर हिस्सा था उसको दबा लिया, उसको सही हिसाब नहीं दिया, सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया। मेरे भाइयों ये सब खयानत की शक्लें हैं। लेकिन सबसे बुरी खयानत मैं समझता हूँ कि अगर दीन के नाम पे अगर कोई करे, मस्जिद के नाम पे करे, मदरसे के नाम पे करे, यतीम खाने के नाम पे करे, दावा सेंटर के नाम पे करे। आज तो पूरी दौड़ लगी हुई, मौलवियों के पास कोई काम नहीं है तो चलो झोला उठाओ निकल पड़ो,
यहाँ मस्जिद हम बनवा देंगे, वहाँ मदरसा हम बनवा देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं अल्लाह वाले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अफसोस के साथ कहना पड़ता है अल्लाह के घर पे भी कब्जा जमा देते हैं। इतने जली लोग हो गए हैं कि अल्लाह के घर पे भी कब्जा जमाने और डाका डालने में लोगों को जर्रा बराबर भी आर और शर्म लोग महसूस नहीं करते। क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे लोग अल्लाह के सामने? कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं मन इस्तामलनाहु मिनकुम अला अमलिन, मैं तुम में से अगर किसी को कोई अमल दे करके भेजूं, सदका और ज़कात की वसूली के लिए भेजूं, फकतमना मिखयतन काना गुलुलन याती बिही यौमल क़ियामा, अगर वो एक सुई भी छुपा लेता है जो ज़कात और सदका की वसूली के लिए गया था, लेकिन उसने एक सुई छुपा ली, बगैर परमिशन के ले लिया, ये भी गुलूल है, खयानत है, क़यामत के दिन लाद कर लाना पड़ेगा। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन इस्तामलनाहु मिनकुम अला अमलिन, अगर मैं किसी को आमिल बना के भेजता हूँ, वसूली करने के लिए भेजता हूँ, फलयाती बिक़लीलिही व कसीरिही, थोड़ा वसूले या ज्यादा वसूले, लाकर सामने उसको हाजिर करे। इतना वसूली हुई है, लीजिए। अब नबी फरमाते हैं फमा उतिया मिनहु अखदा, अगर फिर उसमें से उसको बतौरे मजदूरी के मेहनताना के कुछ दे दिया जाए तो ले ले, और अगर रोक दिया जाए तो रुक जाए, ना दिया जाए तो ना ले। अगर कोई वसूली पे निकला है, हदिया भी लेता है तो ये रिश्वत है, हदिया नहीं ले सकता। क्यों? इसलिए कि जब आप वसूली पे निकले उस वक्त सेठ लोग आपको हदिया देने लगे, नहीं ले सकते आप। इब्नुल लुत्बिया नामी एक शख्स थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको भेजा था वसूली के लिए। जब माल वसूल के लाए सदका ज़कात का, तो कहने लगे हादा लकुम व हादा उहदिया ली, ओ लोगों इतना तुम्हारा है, इतना मुझे लोगों ने हदिया दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फहल्ला जलसा फी बैत अखी, अरे वो अपने बाप के घर में क्यों ना बैठा रहा, अपनी माँ के घर में क्यों नहीं बैठा रहा, वहीं उसका हदिया लोग पार्सल कर देते। जब मैंने उसको वसूली के लिए भेजा तो फिर लोग उसको हदिया क्यों देने लगे? घर में ही बैठा रहता, तब देखते कि कौन सा हदिया मिल रहा है उसको। मामला इससे क्या चला? पता ये चला मेरे भाइयों, मामला बहुत सीरियस है। अगर कोई यतीमों के नाम पे, आजकल तो यतीमों को भी लोग नहीं माफ करते, यतीमों का माल जो खाता है अल्लाह फरमाते हैं अपने पेट में जहन्नम का अंगारा भरता है। यतीमों के नाम पे भी लाते हैं लोग और हड़प कर जाते हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह को ऐसे लोग क्या मुंह दिखाएंगे? सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते ला उल्फियन्ना अहदकुम, मैं तुम में से किसी को न पाऊं क़यामत के दिन याती यौमल क़ियामति वाला रक़बतिही बईर, क़यामत के दिन आएगा उसके कंधे पे एक ऊंट होगा जो ऊंट बिलबिला रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। आदमी कहेगा अल्लाह के रसूल बचा लीजिए, मदद कीजिए। मैं कहूंगा आज मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में देखना नहीं चाहता। हमारे नबी किस कदर शफीक और मेहरबान थे, कहते मैं अपनी उम्मत के लोगों को इस हाल में नहीं देखना चाहता। क़यामत के दिन इतने सारे, जब सारी मखलूक वहां जमा होगी, मेरे भाइयों कितना बुरा हाल होगा, कितनी फजीहत और जिल्लत और रुसवाई का आलम होगा कि आदमी अपनी गर्दन पे ऊंट लादे है, गाय लादे है, बकरी लादे है, और ये जानवर चिल्ला रहे होंगे। मेरे भाइयों बताओ कि उसका भांडा फूट जाएगा कि नहीं? सारे लोग उसको मुंह उठा के देखेंगे कि नहीं? अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे भाइयों, दुनिया की हवस मत पैदा करो, दुनिया की लालच में इस तरह गिरफ्तार ना हो कि तुम अल्लाह के नाम पे लाके उसको हजम कर जाओ, हड़प कर जाओ, खयानत कर जाओ, वरना क़यामत के दिन तुम्हें अपनी गर्दन पे लाद कर लाना पड़ेगा। तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे, कहोगे या रसूल अल्लाह इतनी, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, मैं दामन झाड़ लूंगा और कहूंगा इन्नी ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैया, आज मैं क़यामत के दिन कुछ भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फितनों का ज़माना है,
ایمان بچانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے، چوری زناکاری رشوت و نشاخوری ہر گام پہ فحاشی اور ناچ گانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، ناس دکھ بیانی ہے، نا پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت میں مصروف زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں۔ حالات بڑے نازک اور پرخطر ہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہم لوگ قیامت سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ایسے میں دین ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے دنیا کی ہوس اور لالچ اس قدر آدمی نہ پیدا کرے کہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا مال آدمی ہڑپ کر جائے، مسجد، مدرسوں، یتیم خانوں اور دعوت سینٹروں کے نام پہ آدمی اگر اپنی کمائی اور اپنی دکان چمکانے لگے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کام آسان نہیں ہے، یہ جہنم کی پشت پہ چلنا ہے، جہنم کی پیٹھ پہ کوئی آدمی چل رہا ہے، پل صراط پہ چل رہا ہے، کب گرا، اب گرا کہ تب گرا، اگر ذرہ برابر بھی بہک گیا اور اس کا دامن نہیں بچ سکا تو یقین جانیے جو پل صراط پہ کانٹے لگے ہیں نا، وہ جھپٹا مار کے اس کو جہنم میں ہوتے وہ گرا دیں گے۔ اس لیے کام آسان نہیں ہے، بہت پرخطر ڈگر ہے، اور اس ڈگر سے سلامت گزر جانا یہ بہت دیدہ بروں کا کام ہے، بہت کوئی اللہ والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا تو ہی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں، محتاط جو ہو جائے وہ شخص سیانہ ہے، جو دامن بچا لے جائے وہی سیانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، آخری بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں، جو بیماری ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہے وہ ہے رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، سود خوری کا بازار گرم ہے، اور آپ کو پتا ہے سود لینے والا یا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں پہ لعنت آئی ہے، اور ایسے ہی سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الطرد والابعاد من رحمت اللہ۔ عام طور پہ لعنت 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 سمجھتے ہیں یہ ملعون ہے، یہ لعنتی ہے، مطلب تو سمجھ لو تب سمجھ میں آئے گا۔ لعن تان کا مطلب، لعن کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تو ایسا شخص ملعون ہے اور اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے اور سود لکھتا ہے اور سود کی گواہی دیتا ہے۔ اور اسی طرح تاکہ رسول نے فرمایا درہم و ربا، ایک درہم سود اگر آدمی کھاتا ہے وَهُوَ يَأْكُلُهُ، درہم و ربا يَأْكُلُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ، جان بوجھ کر ایک درہم سود کھاتا ہے، أَشَدُّ مِنْ 36 الزِّنِيَةِ، 36 مرتبہ زناکاری بدکاری سے زیادہ ڈینجر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا الربا 70 بابا، سود کے 70 دروازے ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، سب سے آسان دروازہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور قیامت کے دن میرے بھائیوں جو لوگ سود کھا کھا کے اپنی توڑیں بڑھاتے ہیں، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے ان کے پیر زمین پہ نہیں پڑیں گے صحیح طور سے، ان کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ جس طرح دنیا میں ان کا فیگر بگڑ جاتا ہے، قیامت میں ان کا بیلنس بگڑ جائے گا، ایک پیر یہاں رکھیں گے دوسرا وہاں رکھیں گے، دیکھنے والا سمجھے گا یہ کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون
इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो इस तरह उठाए जाएंगे जैसे किसी शख्स को शैतान ने छूकर खप्ती बना दिया हो, मजनू पागल और दीवाना बना दिया हो। ये है सूदखोरी। जब अल्लाह के रसूल मेराज में गए, देखा एक आदमी को खून के नहर में बीचों बीच में खड़ा है। हाँ, खून की नहर में बीचों बीच में खड़ा है और किनारे एक फरिश्ता, एक आदमी है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको पत्थर से मारता है और इतना जोर पत्थर मारता है कि फिर उसको ढकेल के वहीं पहुंचा देता है। बराबर ये सब करता रहता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन आदमी है? आपको बताया गया हादा आकिलुर रिबा, ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था, इसलिए आज इसको ये सजा मिल रही है। तो मेरे भाइयों, हरामखोरी से जो लोग अपने जिस्म को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु जिस्मिन कुल्लु लहमिन नबता मिनस-सुहति फन्नारु औला बिही। हर वो जिस्म, हर वो गोश्त पोस्त जो हराम से पलता बढ़ता है, जहन्नम की आग उसको जलाने की ज्यादा हकदार है और ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती है। अभी मैंने आपको सुनाया, अभी मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि तुम आपकी दुआएं कबूल हो जाएं तो हलाल रोजी खाइए। अल्लाह के रसूल ने एक आदमी का जिक्र किया, नक्शा खींचा, लंबा सफर करके आता है, हज के लिए आता है, उम्रे के लिए आता है, खाने काबा का चाहे वो पर्दा ही पकड़ के लिपट जाए, लेकिन अगर कमाई हराम है, रो रो के गिड़गिड़ा के खाने काबा का चाहे पर्दा ही पकड़ के चिमट जाए और अल्लाह को कहे या रब्बी ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे परवरदिगार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मतअमुहु हराम व मलबसु हराम, उसका पीना हराम, उसका खाना हराम, वग़ुज़िया बिल हराम, हराम से उसने ग़िज़ा हासिल की, फ़अन्ना युस्तजाबु लह, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? कैसे कबूल हो सकती है? कितना मुक़द्दस सफर करके कोई चला जाए, चाहे वो मक्का मदीना ही क्यों ना चला जाए, और या अल्लाह पुकारे, अगर हराम कमाता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सारी वईदें हैं और इसके नुकसानात हैं और क़यामत के दिन ये हराम माल आपके खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देगा। और मैं तो एक चीज़ भूल गया, शेख ने बताया अभी, हमारे शेख मंसूर साहब ने, आपसे कहीं ज़्यादा हमारी बहनें आई तो पैसा तो कमाते हैं मर्द, इसलिए हमारे मुखातिब मर्द ही हो गए। मैं बहनों के लिए भी कुछ सुना, पैसा आप तो नहीं कमाती हैं, लेकिन एक काम आप करती हैं जिससे आप अपने शौहरों को हराम में मुब्तला करती हैं, हराम कमाने पे उकसाती हैं। अगर ये जुर्म आप करती हैं तो आप बराबर की शरीक होंगे। एक हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अव्वला मा हलका बनु इस्राइल, सबसे पहले बनु इस्राइल जो हिलाक हो गए, मालूम है कैसे हुए? औरतों की वजह से हुए। बिअन्ना इमरातल फकीर, गरीब की बीवी, कानत तुकल्लिफुहु मिन अथ-थियाबि अव इस-सियाबि मा तुकल्लिफु इमरातुल गनी, गरीब और फकीर की बीवी अपने शौहर से जेवरात और कपड़ों के डिमांड उसी तरह किया करती थी जिस तरह मालदारों की बीवियां करती हैं। बनु इस्राइल हिलाक हो गए। बहुत से असबाब थे बनु इस्राइल के हिलाक होने के, उसमें एक सबब ये भी था कि इनकी बीवियां फैशन परस्ती में बहुत आगे निकल गई थी। अब जब मालदारों की बीवियां ऊपर से नीचे तक जेवरात पहन के लाल पीली होके छम छम करके निकलती थी तो गरीबों की बीवियां दिल में कुढ़ती थी, तो अपने गरीब शौहरों से कहती थी कि अरे तुम कब कमाओगे फलाना बप्पा, हाँ पूरी जिंदगियां तो गुजर गई, हाँ वो देखो फला के घर की औरतें कैसा लाल पीली सोने चांदी से बिल्कुल सर से पैर तक अटी रहती हैं, हमारे अरमान कब पूरे होंगे? हाँ बुढ़ापा तो आ गया। अब आदमी सोचता है कि भैया हलाल हराम में पड़ेंगे तो बीवी के अरमान पूरे नहीं होंगे, इसलिए वो डाका डालना शुरू कर देता, माल गसब करना शुरू कर देता, हराम कमाना। तो अगर आप अपने शौहरों को हराम कमाने पे उकसाती है तो आप बराबर की शरीक। मेरी बहनों इंतजार करो, अगर हालात मुश्किल है तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, लेकिन अपने शौहर से कहो शौहर नामदार हमें हराम नहीं चाहिए, हराम से हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे। जब तक अल्लाह हलाल रोजी से हमारे हालात अच्छा नहीं करता, हराम
کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کم میں گزارا کر لیں گے۔ اسی طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا، فیشن پرستی میں بہت آگے نکل گئی تھی، رسم و رواج، فیشن پرستی، بناؤ سنگار،